Can you all see the screen, whiteboard? Yes, बच्चों. Here we go. So today's topic now is about क्या पढ़ेंगे हम लोग? The skeleton. Human skeleton. So let's begin then. Interesting है, easy है, you will like it. हो जाओ शुरू चलो. So when it comes to skeleton बच्चों, skeleton क्या होता है? Skeleton is the framework of the body. बराबर है? Skeleton is nothing but framework of body. ठीक है? That helps in either protection or support. जिसके कई सारे functions हैं. So why we need this skeleton basically? है ना? क्यों चाहिए हम लोगों को ये फ्रेम skeleton basically? तो आप लोगों को पता है skeleton is required for protecting our important organs of the body. Skeleton is required for support. Skeleton helps in many ways. जैसे अभी कुछ functions अगर मैं लिखूं skeleton के, तो क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं? एक हो गया protection. Whose protection? Protection of important organs, vital organs, जैसे कि brain is protected by brain box or cranium. Then protection of spinal cord by vertebral column. Protection of eyeballs by eye sockets. है ना? Protection of heart by rib cage. Protection of lungs by rib cage. तो ये सब इसी का functions है कि नहीं बच्चों? सिंपल है. Then another function of this skeleton is what? It helps in support. बराबर है ना? So it gives support to our body. Likewise, it also helps in movement and locomotion. अपने चैप्टर का ही नाम है ना, movement and locomotion में भी अपना skeleton मदद करता है. बराबर है ना? सब लोग खाली बैठने के लिए चुपचाप इंटरेक्ट करते रहो मेरे साथ में सब लोग. नील, आर यू लिसनिंग? भूमि, मोहम्मद, उपमन्यु का माइक ही नहीं दिख रहा है. Then skeleton Yes, also, yes, that's great. Keep interacting. Skeleton also plays an important role in storage of calcium and phosphorus. Storage of calcium and phosphorus हमारे bones में है ना बच्चों, तो वो भी उसी का function है. Then it also helps in hemopoiesis. Can anybody tell the meaning of the word hemopoiesis? किसी को पता है क्या इस word का meaning? Bhumi, can you? Do you know the meaning of the word hemopoiesis? No, हाँ बोल. I don't know. अरे you have studied already. Heme is blood. Poiesis is formation. Formation of blood or blood cells. Understood? Yes, sir. RBCs, WBCs किधर तैयार होते हैं? हमारे बोन मैरो कैविटी में ना, तो वो हीमोपोएसिस है. Likewise, it also provides space for muscle attachment. Space for muscle attachment भी ये प्रोवाइड करता है. Do you agree with me? समझ में आया क्या? तो ये सब स्केलेटन का फंक्शंस है. बट जब हम लोग बोलते तो स्केलेटन मतलब हमारे दिमाग में बोन्स ही आता है. बट इट इज नॉट ऑलवेज बोन्स. इट कैन बी एनीथिंग. जैसे हमारे बॉडी में नेल्स आर ऑल्सो अवर स्केलेटन. हेयर इज ऑल्सो द स्केलेटन. ठीक है? कार्टिलेज इज ऑल्सो स्केलेटन. तो स्केलेटन कैन बी एनीथिंग विच प्रोटेक्ट्स और सपोर्ट्स आवर बॉडी. जो बाहर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन.
Exoskeleton means when skeleton is outside the body and the muscles or soft parts are inside. And अगर muscles बाहर है और skeleton अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Endoskeleton. Is this clear to all? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो एक्सोस्केलेटन में आप लोग इन केस क्रैब जो बोलते हैं उनका शेल है, स्नेल का जो शेल होता है वो एक्सोस्केलेटन ही है, बराबर है, आर्थ्रोपोड्स में वगैरह। हम लोगों में बोन्स है, सो वो हमारा एंडोस्केलेटन है। कार्टिलेज हो सकता है कुछ बोनी फिशेस में, तो वो भी एंडोस्केलेटन है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी। सब लोगों को इतना समझ में आया क्या? क्लियर है इतना? हाँ बच्चों बोलो जल्दी जल्दी। से yes or no, come on, don't sit quiet. MK समझा? Yes मोहम्मद। यस सर। गुड। चलो अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोगों को। सो आर यू रेडी फॉर द क्लासिफिकेशन? इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटन, ठीक है? तो जो पूरा स्केलेटन है हमारी बॉडी में, उसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। The entire skeleton in our body is broadly divided into two types. किसी को याद है ये? कॉलेज में पढ़ा है आप लोगों ने ये? Yes बच्चों, anybody remember this? हाँ कि ना? हुआ है ना ये चैप्टर स्कूल में? नहीं हुआ? भूमि स्टडीड? No, sir. ठीक है। Axial skeleton and appendicular skeleton. ठीक है, skeleton is divided into two main parts. कौन से दो पार्ट्स हैं? Axial skeleton and appendicular skeleton. क्या मतलब होता है एक्सियल का और एपेंडिकुलर का? एक्सियल का मतलब होता है जो एक्सिस में है वो वाला स्केलेटन। एपेंडिकुलर मतलब जो अपेंडेजेस बनाता है अदर देन एक्सिस, जो हमारे हाथ और पैर में हड्डियां हैं वो एपेंडिकुलर में आती है। तो अगर हम लोग टोटल लिखेंगे तो इस एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 29 बोन्स है और इस एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में 80 है। मेक अ स्मॉल करेक्शन, इसमें हमारे पास 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन में और बचे हुए यहाँ पे 126 बोन्स है। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS में वगैरह सुना है ना, खाली इंसान के बॉडी में 206 टाइप की हड्डियां होती है। सुना है कि नहीं सुना है? देयर आर टोटल 206 बोन्स और उसमें से 80 बोन्स हमारे एक्सिस में है और बचे हुए 126 बोन्स अपेंडेजेस बनाते हैं, हमारे हैंड्स और लेग्स बनाते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ बच्चों, अब आ जाओ आगे। न्यूबॉर्न बेबीज में ज्यादा बोन्स होते हैं। दे हैव गॉट मोर देन 300 बोन्स। 276 किसी बुक में आपको दिखेगा, 306 किसी बुक में दिखेगा। वो बाद में फ्यूज हो जाते हैं तो नंबर कम हो जाता है उनका। अदरवाइज दे हैव मोर बोन्स। ठीक है, यहां तक सब लोग कॉन्फिडेंट है? कौन गायब हो गया? उपमन्यु। चलो आगे बढ़ो। अब इस एक्सियल स्केलेटन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इंक्लूड्स नाउ एक्सियल स्केलेटन में वापस हमारे पास और क्या क्या है वो देखो। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट पार्ट दैट इज देयर इन योर एक्सिस, जो हमारे एक्सिस में प्रेजेंट है वो है हमारा स्कल, है कि नहीं बच्चों? स्कल इज देयर इन योर एक्सिस, तो वो हो गया एक्सियल स्केलेटन। आफ्टर स्कल यू हैव गॉट नेक्स्ट पार्ट इज रिब केज। बराबर है बच्चों? रिब केज। देन
और वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। सो ये तीन मेन चीज है, रिब केज, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, दैट फॉर्म्स आवर एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी एवरीबडी। Yes, sir. यस, दैट्स ग्रेट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। जो अगला पार्ट रहेगा वो होगा अपना एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आएगा वो सुनो। एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे बच्चों, गर्डल्स। Now when I say girdle, what do you mean by that? Girdles मतलब ऐसे बोन जो हमारे हैंड बोन्स और लेग बोन्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इधर है अपने, इधर ये वाला होता है गर्डल, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। वैसे ही हिप्स में जो होता है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो हमारे पास दो गर्डल है। कौन से दो गर्डल्स? पेक्टोरल गर्डल, या इसको ही हम लोग बोलते हैं शोल्डर गर्डल, और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल, या इसको ही हम लोग बोलते हैं हिप गर्डल। तो आउट ऑफ 126 बोन्स इस गर्डल में टोटल 6 बोन्स होते हैं बच्चों। इज दिस क्लियर? यहाँ 80 में से देखो, स्कल में हमारे 29 बोन्स हैं, रिब केज में 25 बोन्स हैं, और वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं। हो गया 80। ये देखो 29 प्लस 25 प्लस 26 चेक करो, हो गया 80 बराबर। करो करो करो, एडिशन करते जाओ बच्चों। चलो अब आ जाओ इधर। नाउ व्हेन इट कम्स टू एपेंडिकुलर स्केलेटन, गर्डल्स हो गया। गर्डल्स के बाद में आता है हमारा बोन्स ऑफ 4 लिम्स। 4 लिम्स बोले तो क्या? हैंड्स। बोन्स ऑफ 4 लिम्स, हमारे हाथ की हड्डियां। तो एक हाथ में हमारे 30 हड्डियां हैं, दूसरे हाथ में 30 है, तो टोटल कितने हो गए? 60। ठीक है, बोलो बच्चों, बराबर है। अब आ जाओ यहां। अब आएगा आपका बोन्स ऑफ 4 लिम्स के ऑपोजिट क्या बोलेंगे हम लोग? Hind limb. तो हाइंड लिम्स में भी सेम ही है, 30 प्लस 30 60। तो देखो इधर ये 60, ये 60 120, और ये 6 126। तो ये देखो इधर आपका 126 है। समझ में आया? बोलो। 6 में से भी यहाँ अगर हम बोलेंगे तो इधर होते हैं 2, इधर होते हैं 4, आई मीन इधर होते हैं 4, इधर होते हैं 2। तो इस तरह से आपके टोटल 6 बोन्स है। समझा क्या क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन? एवरीबॉडी टेल मी। भूमि, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. पक्का? एवरीबॉडी कॉन्फिडेंट विद दिस? तो अभी डिटेल में पढ़े हम लोग एक एक चीज। एंड आई हैव गॉट रियल स्केलेटन विथ मी टू शो यू पीपल। आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। चलो, सो आर यू रेडी? शुरू करें हम लोग फिर। पहला पार्ट, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में भी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वन, द स्कल, ग्लोब ऑफ आवर बॉडी। है ना बच्चों? स्कल क्या है? आपके बॉडी का ग्लोब है, हमारे शोल्डर पे रखा हुआ ग्लोब। तो नाउ दिस skull is made up of how many bones we studied? 29 bones, बराबर है कि नहीं? 29 bones। तो ये अलग अलग हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, they are all of 3 shapes. Some are cylindrical, हम लोगों ने वो एनिमल टिश्यूज में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। सिलिंड्रिकल बोन्स है, फ्लैट बोन्स है,
इरेग्युलर बोन्स है। तो यहाँ पे जो स्कल में बोन्स है बेसिकली वो फ्लैट और इरेग्युलर बोन्स है। तो नाउ इन स्कल अगेन वी हैव गॉट, हमारे स्कल में और क्या है? इन आवर स्कल वी हैव गॉट फेस, ब्रेन बॉक्स। तो इसमें क्या क्या आता है वो देखो। सबसे पहले आएगा क्रेनियल बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट क्रेनियल बोन्स, मतलब ब्रेन बॉक्स ये वाला। टोटल 8 बोन्स आर देयर इन आवर ब्रेन बॉक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आउट ऑफ 29 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारा फेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेशियल बोन्स। क्या बोलेंगे उसको? यस, जॉ इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ फेस, नील। फेशियल बोन्स टोटल 14 आर देयर। इसमें से कुछ सिंगल है, कुछ पेयर्ड है। इसमें भी कुछ सिंगल है, कुछ पेयर्ड है। फिर थर्ड वन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ये आप लोगों ने सुना है ऑलरेडी, याद है क्या? ईयर ऑसिकल्स आर द बोन्स प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ आवर ईयर। 3 बोन्स एक कान में। तो वी हैव गॉट टोटल 6 बोन्स, मतलब 3 पेयर्स। वी कैन से 3 पेयर्स, बराबर है। और लास्ट में क्या आएगा? आखिरी जो बोन रहता है वो एक ही बोन है, हायोइड बोन, या हायोइड एपैरेटस भी बोलते हैं इसको कभी कभी, बट मीनिंग सेम है। चलो करो काउंट इसको, कितना हो गया टोटल बताओ मुझे, कितना हो गया टोटल? बोलो। अरे 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 + 1 29। क्लियर है? कम ऑन चिल्ड्रन, कीप रिस्पॉन्डिंग। उपमन्यु, इज इट क्लियर? भूमि, फॉलोड? यस भूमि। Yes, sir. तो अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो, चलो हो जाओ शुरू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल बोन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रेनियल बोन्स। कितने होते हैं टोटल? 8। क्रेनियल बोन्स मतलब कौन से बोन्स? बोन्स दैट कवर अवर ब्रेन, ब्रेन बॉक्स के बोन्स। 8 में से कुछ सिंगल है, कुछ पेयर्ड है। ठीक है, सिंगल भी है और पेयर्ड भी है। अब देखो इधर, वो कौन से बोन्स है? सो इफ यू लुक एट योर ब्रेन बॉक्स, ऐसा रहेगा वो। अब सबसे पहला बोन होगा इधर, द फर्स्ट बोन विच इज देयर इज हियर, फोरहेड में। ठीक है, यहाँ पे आपकी नाक वगैरह आएगी। तो ये होता है पहला बोन। नाम याद रखो, फ्रंटल। एक ही बोन है ये, सिंगल बोन है, फ्रंटल। ठीक है बच्चों, फोरहेड बनाता है आपका। फिर इधर देखो, दिस विल बी अनदर बोन जो रूफ बनाता है आपका ब्रेन का। दिस विल बी कॉल्ड एज पैराइटल। नाम है पैराइटल, पर ये 2 होंगे। सो बीच में एक जिगजैग लाइक जॉइंट होता है, ये वाला, इसको सूचर जॉइंट बोलते हैं। दिस जॉइंट इज कॉल्ड सूचर जॉइंट। हम लोग जॉइंट्स अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? नेक्स्ट, फिर आ जाओ, ये कान की हड्डी जहां पर अपनी प्रेजेंट होती है, वो वाला बोन बच्चों, द बोन वेयर योर कैविटी ऑफ ईयर इज प्रेजेंट। ओके, द बोन वेयर योर cavity of ear is present, that will be called as temporal bone. दिख रहा है कि ये सबको? बताओ बच्चों। टेम्पोरल बोन 2 होते हैं, पैराइटल 2 होते हैं, फ्रंटल 1 हो गया। कितने हो गए टोटल? 4 + 1 5। आर यू लिसनिंग? यस किड्स। देन ये वाला जो है हमारा बैक साइड ऑफ योर हेड, इधर होता है एक बोन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल। जो हम लोगों ने ब्रेन के लोब्स पढ़े थे ना, वैसे ये भी है। इसका नाम होगा ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल। दिस इज ऑल्सो सिंगल।
ठीक है, 2 पेड हो गए, 2 सिंगल हो गए, टोटल 6 हो गए, और 2 बोन होते हैं बच्चों जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब उसमें से एक बोन जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट हियर, एक छोटा सा बोन है, ये सिंगल ही होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेनॉइड बोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? स्पेनॉइड बोन एक सिंगल बोन है, और इस बोन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। सो ये आपका क्वेश्चन था पिछले एग्जाम में, इफ यू रिमेम्बर, सेला टर्की का इज फाउंड इन, ऑप्शन में बोन था पर वो बोन का नाम ये होता है स्फेनॉइड बोन। इसी में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लॉग्ड इन होता है, इट लीव्स देयर लॉज्ड इन, ठीक है। वन मोर बोन इज देयर। अब वो बोन यहाँ आपको बराबर इतना ठीक से नहीं दिखाई देगा, वो अगर आप आई सॉकेट में से झांक के देखोगे, यहां से अगर आप ऐसे झांक के देखोगे तो समवेयर हियर यू विल सी वन मोर बोन, उसको बोलते हैं एथमॉइड बोन। रिमेंबर वन मोर बोन वी हैव देयर just behind your nose, you can get it if you observe through eye socket। नाम बोला मैंने उसका भी, एथमॉइड बोन, जो एक और सिंगल बोन होता है, एथमॉइड बोन। क्या आपको समझ में आया कौन से बोन से, कितने बोन से, कहां पर है? बोलो कौन सा पेड है, कौन सा सिंगल है? चलो बोलो जल्दी जल्दी। आशना लेट ज्वाइन किया, वेर यू? मेरा क्लास था दूसरा। ऑलराइट, चलो ये वाले बताओ मुझे, बोन्स क्लियर है क्या सबको? किसको नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? आशना, यू अंडरस्टूड? बोलो। हाँ, ये एक हो गया फ्रंटल, फिर ये एक हो गया ऑक्सीपिटल, फिर ये भी एक है, और एक रहता है इधर। सो ये सिंगल सिंगल है, और पेड बोला तो ये टेम्परल और आपका ऑक्सीपिटल है, ठीक है। बोलो बच्चों, एवरीबॉडी कॉन्फिडेंट? तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक देता हूं मैं आपको, चाहिए? बोलो। सुनो, एक लाइन में सब बोन्स आप लोग याद रख सकते हो। ये देखो, स्नेक्स फ्रॉम तांजानिया eat skulls। स्पेनॉइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, कौन सा बचा भी? स्नेक्स, ये लो, स्नेक्स फ्रॉम टांजानिया ईट स्नेक्स फ्रॉम तांजानिया ईट स्कल्स। नहीं, देखो इसमें अभी 2 बच रहे हैं ना, ओ एक हो रहा है और पी वाला पी हो रहा है ना। हाँ यही लाइन, बट अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। स्नेक्स फ्रॉम तांजानिया ईट स्कल्स। चलो रहने दो, बाद में बोलता हूं मैं इसका निमोनिक आपको, बट ऐसा ही एक लाइन था, निकल गया दिमाग से, बट इट इज इजी। फ्रंटल पैराइटल जो आप लोगों ने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं, वही पार्ट्स यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद दिस क्रेनियल बोन्स? बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑल आर कॉन्फिडेंट? बोलो बच्चों। उपमन्यु, टेल मी, इज इट ओके? और आपका टेस्ट है संडे को, फुल सिलेबस वाला, पता है क्या? देखा आप लोगों ने? यू रेड दैट इन द ग्रुप?
सो सबको देना है, nobody will skip the test. It is important. 360 मार्क्स का टेस्ट है. सिर्फ ये स्केलेटन चैप्टर उसमें नहीं है, उसके अलावा बाकी सब रहेगा. वो बॉटनी वाला भी रहेगा जो सर अभी पढ़ा रहे, दैट ऑल्सो विल बी देयर. ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 7-8 क्वेश्चन उस चैप्टर में से रहेंगे. सो यू कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी सीरियसली. यू हैव गॉट नाउ 4 more days, है ना. आज का दिन पकड़ के 4 दिन आपके पास है. चाहिए तो थोड़ा लेट दे दो टेस्ट, तो फिर वो पूरा दिन भी मिलेगा संडे वाला. हो जाएगा ना सब लोगों को. ऑल चैप्टर्स आई सेड एक्सेप्ट दिस स्केलेटन. और वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जहाँ जितना हो चुका है उतना, मतलब 11 चैप्टर्स तो रहेंगे. यू विल हैव 11 चैप्टर्स ना. सो थोड़ा लोड है, पर कोशिश करो. हर चैप्टर में से 9 क्वेश्चंस है. 9 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, या 8 क्वेश्चंस. नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू ऑल कैन डू दैट. बट सबको टेस्ट देना है. नोबडी विल रन अवे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो कंसिस्टेंट होगा वही सक्सेसफुल होगा. ठीक है. तो क्रेनियल बोन्स हम लोग कर चुके हैं. आई होप एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट विद दिस. अब बढ़ते हैं आगे विद दिस फेशियल बोन्स. आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों. शैल वी स्टार्ट? फेशियल बोन्स बताओ. हो जाओ शुरू. अभी ये फेशियल बोन्स में भी सम बोन्स आर पेयर्ड, सम बोन्स आर सिंगल. ठीक है. सम बोन्स आर पेयर्ड, सम बोन्स आर सिंगल. और अब कौन से पेयर्ड है, कौन से सिंगल? सिंगल सिर्फ 2 ही है, बाकी जो 6 बोन्स है वो पेयर्ड है. चलो नाम सुनो, उससे आपको पता चलेगा. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फेशियल बोन, सबसे पहला बोन जो होगा उसका नाम है नेजल. नेजल बोले तो क्या, ये नाक का जो ब्रिज है हमारा इधर का, ये जिसपे हम स्पेक्स रखते हैं, हड्डी, वो वाला नेजल बोन है, जिसमें 2 हड्डियां हैं. दोनों के बीच में एक जॉइंट भी है, परमानेंट जॉइंट. सो दैट इज योर फर्स्ट बोन, द नेजल बोन. ठीक है. आई विल शो यू द इमेज ऑल्सो. पहले ये वाला देख लो आप लोग. नेक्स्ट वन, आफ्टर नेजल बोन वी हैव गॉट zygomatic. zygomatic मतलब ये चिक बोन्स, गुगली उगली वुश वाले 2 बोन्स. समझ में आ रहा है? सो द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द चिक बोन्स. समझा बच्चों? सुन रहे हो सब लोग? तीसरा वाला सुनो भी. पैलाटाइन. पैलाटाइन इज रूफ ऑफ योर माउथ कैविटी. ये भी 2 होते हैं. जिसको आपका टंग टच कर रहा है ऊपर रूफ को, वो होता है पैलेट. तो वहां पे हड्डी है जिसको बोलते हैं हम लोग पैलेटाइन. डिड यू हियर मी? समझ में आया? तो ये पैलेटाइन कहाँ होता है आपका? रूफ ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी या बकल चेंबर का रूफ को हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन. तो वहां पे एक जॉइंट होता है दोनों के बीच में, वापस 2 हड्डियों के बीच में. देन कम्स योर मैक्सिलरी, या मैक्सिला भी बोल सकते हो इसको आप. ठीक है. मैक्सिला. तो ये मैक्सिला इज योर अपर जॉ. तो यहाँ पे एक जॉइंट है बराबर सेंटर में हमारे. सो इसको ही हम लोग बोलेंगे बोन्स ऑफ अपर जॉ. क्लियर है? बोलो बच्चों. देन कम्स योर inferior nasal concave. क्या होता है ये inferior nasal concave? मतलब जहां हमारे नाक का ब्रिज शुरू हो रहा है उसके पहले एक टनल होता है, छोटा सा डिप्रेशन होता है 2, उसको ही बोलते हैं हम लोग inferior nasal concave. तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कैसे बोलेंगे? इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर नोज. लास्ट पेड बोन का नाम सुनो बच्चों.
लैक्रिमल, लैक्रिमल बोला तो क्या होगा? आई सॉकेट्स, है ना, 2 आई सॉकेट्स। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ऑल पेयर्ड बोन्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो बच्चों, 12 बोन समझ में आया? भूमि, आशना, उपमन्यु, इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है। और अब आ जाओ, 2 सिंगल बोन से मैंने बोला, उनका नाम है, सबसे पहले है आपका लोअर जॉ विच इज कॉल्ड एज ए मैंडिबल। यहां से शुरू होता है यहां तक, तो ये पूरा मैंडिबल मतलब सबसे बड़ा बोन है फेस का। लार्जेस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर फेस इज योर मैंडिबल। तो ये दो, ये सिंगल बोन है, दिस इज नॉट अ पेयर्ड बोन। सो दिस इज ए सिंगल बोन जिसको कॉमनली हम लोग लोअर जॉ बोलते हैं, है कि नहीं? और आखिरी सिंगल बोन है आपका वोमर। वोमर is also a single bone which is present at the base of these nasal bones. ये nasal bones are like this, ये 2 nasal bones हैं, इसका फ्लोर बनाता है आपका वोमर। ये आपका ब्रिज है नाक का, और इसका ये फ्लोर है जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल बोन, फ्लोर ऑफ नेजल बोन। अब बताओ मुझे, all 14 names are clear to you? Tell me everybody. उपमन्यु, समझ में आया? बोलो। यस उपमन्यु, हाँ ना, कुछ तो बोलो। What about other people? You all understood this? Yes, sir. तो अभी इसको Yes, याद sir. रखने के लिए मेरे पास एक लाइन है, एक मेरे पास हाँ, नेमोनिक है। डू यू वांट इट? अच्छा, मैं आप लोगों को अब यही एक इमेज भेज रहा हूँ, ग्रुप में देख लो, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चेक योर ग्रुप, आई हैव सेंड द इमेज। मैं यहां पर भी दिखाता हूं आप लोगों को। मिला ना ग्रुप में? देखा आप लोगों ने? वहां पर भी देख सकते हो। रुको, यहाँ मेरा भी कनेक्ट नहीं हुआ। देख रहे हो आप लोग ग्रुप में? बताओ मुझे। यस, चेक दिस एवरीबॉडी। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन शेयर व्हाट आई एम डूइंग? बोलो बच्चों, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये लो आपका क्रेनियल बोन्स भी है, फेशियल बोन्स भी। ये लो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पेनॉइड बोन, एथमोइड यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ से, हाँ, आंख से देखो झांक के तो एथमोइड दिखेगा। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन, ये आपके क्रेनियल बोन्स थे। क्लियर है सबको? बोलो जल्दी जल्दी, कम ऑन, रिस्पॉन्ड मी। हेलो बच्चों। अब फेशियल बोन्स देखो। फेशियल में सबसे पहले नेजल, ये लो नाक की हड्डी आपकी। देन जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक मतलब चीक बोन्स आपकी, ये लो। ठीक है, देन पैलेटाइन। पैलेटाइन बोला तो मैंने बोला आपको रूफ ऑफ योर माउथ कैविटी होता है। तो यहाँ माउथ कैविटी कैसे दिखाएंगे? रूफ ऑफ माउथ कैविटी नहीं दिखा सकते। ये लैक्रिमल भी उसी का पार्ट था, वो भी समझ में आया आपको। नेक्स्ट वन, ये देखो मैंडिबल, आपका लोअर जॉ है, करेक्ट है। और बाकी मैक्सिला है, ये आपका अपर जॉ है। दिस यू कैन सी, मतलब जो विजिबल बोन्स है वो आप देख सकते हो यहाँ पे।
रेस्ट ऑल आर इनसाइड, उसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते, है ना बच्चों, है कि नहीं? क्लियर है ये सब? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दीज नेम्स? कोई दिक्कत इसके बारे में? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। Yes, sir. ग्रेट। तो इसको याद रखने के लिए एक लाइन बता रहा हूं मैं, आप लोग फटाक से उसको भी याद कर लो। ऑल फेशियल बोन्स कैन बी रिमेम्बर्ड एज न्यू Z programs make Indians laugh very much. Make, लिख के रखो ये लाइन, Indians laugh very much. अब बताओ मुझे कौन से नाम है, समझ में आ रहे क्या बोन्स के? नेजल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, मैक्सिलरी,